الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے نقل کیا ہے۔ اس ارشاد گرامی کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید عرض کرتا ہوں، وہ سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ یہ حدیث بھی سمجھ آ جائے گی۔ ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جس طرح انسان دو چیزوں کا مجموعہ جسم اور روح ہے، اسی طرح پوری کی پوری کائنات جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان پوری کی پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ کائنات کیا ہے تو انسان اپنے اپنے جسم کو دیکھ لے۔ پوری کی پوری کائنات تفصیل ہے، اس کا اجمال انسان کا جسم ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو یوں سمجھے کہ یہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے اور یہ اس کا اجمال ہے، اس کا نمونہ اور سیمپل ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک دکاندار ہے، ڈیلر ہے کسی چیز کا، اور وہ مختلف اس کے پاس اجناس کو وہ فروخت کرتا ہے، سیل کرتا ہے، تو اس کی دکان پر چند ایک چیزوں کے نمونے موجود ہوں گے۔ چاول کا خریدار ہے، بیچنے والا چاول کا کاروباری ہے، لوگ اس کی دکان پہ جائیں گے کہ ہمیں چاول چاہیے، اس کے سامنے 3-4 ڈبے موجود ہوں گے جس کے اندر یہ سارے کے سارے چاولوں کا نمونہ ہوگا۔ اب وہ کہے گا کہ یہ چاول فلاں نسل، یہ فلاں نسل، فلاں قیمت ہے، اس طرح ہے۔ تفصیل کے لیے وہ کہے گا کہ آپ اس کو چیک کر لیں، اس کا آرڈر بک کروائیں، اس کی اصل جو ہے ذخیرہ ہمارے پاس وہاں فلاں جگہ پہ سٹور ہے، اس میں موجود ہے۔ اب اس کو ذخیرے کو وہ نہیں دیکھتے، نمونے کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کروڑوں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی کائنات اگر اس کا نمونہ دیکھنا چاہے تو انسان اپنے جسم کے اندر دیکھے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو 4 چیزوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان جو ہے پانی، ہوا، مٹی اور آگ سے بنا ہے۔
इंसान का जिस्म मट्टी का नमूना, मट्टी जो है सुर्ख भी है, मट्टी सफ़ेद भी है, मट्टी स्याह भी है, मट्टी नरम भी है और मट्टी सख्त भी है। सख्त जगह सख्त मट्टी का नमूना, नरम जिस्म नरम मट्टी का नमूना। ज़मीन ऐसी भी होती है जहाँ जरखेज होती है, जिस्म के ऊपर उगलने वाले बाल, वो जगह जरखेज मट्टी का नमूना। हाथ की हथेली ऐसी ज़मीन का नमूना जहाँ से अज़ल से अबद तक कोई पौधा पैदा नहीं हुआ। इस हाथ की हथेली पर भी जब से इंसान बना इसकी मौत तक कोई एक बाल भी पैदा नहीं हुआ। इंसान जिस मट्टी के अंदर पहाड़ भी पैदा किए गए, पत्थर से पैदा किए गए, इंसान के दांत उन पहाड़ों का नमूना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को पैदा किया है। आग को है, आग का काम गर्म करना, गर्म करने के बाद कोई भी चीज हो उसको उबालना हो, उसको गर्म करना हो, तो इंसान का मैदा, मैदे के अंदर गर्मी, उस गर्मी से हर खाई हुई चीज हजम हो जाती है। ये उस आग का नमूना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद और सूरज बनाए। अगर दिन को चांद ना हो, दिन को सूरज ना हो तो दिन जो है अंधेरा छा जाएगा। अगर रात को चांद ना हो तो रात भी अंधेरी बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो आंखों को, एक को सूरज का नमूना बनाया, एक को चांद का नमूना बनाया। अगर एक आंख चली जाए इसका आधा जहान अंधेर हो जाएगा। अगर दूसरी आंख चली जाए इसका पूरा जहान, पूरी दुनिया पे अंधेरा छा जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने पानी को पैदा किया। पानी नमकीन भी है, पानी मीठा भी है, पानी कड़वा भी है, पानी पाक भी है, पानी नापाक भी है, पानी कतरों के जरिए से भी आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म के अंदर जो पानी बनाया, ये उस पानी का नमूना है। इंसान के जिस्म के अंदर पानी गर्म भी है, पानी ठंडा भी है, पानी मीठा भी है, पानी पाक भी है, पानी नापाक भी है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इंसान को, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यहाँ सब्जा उगा दिया, ऐसी जमीन बनाया जिसके ऊपर बाज पौधे ऐसे लगाए जिसका कद मखसूस कर दिया। इंसान की बालों के बाल, इंसान के टांगों के बाल, ये उस दरख्तों का, पौधों का नमूना है जो कभी एक हद से बढ़ते नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे दरख्त भी पैदा किए, अगर काटते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, उनका कद भी बढ़ता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सर के बाल पैदा किए, सर के बाल उन दरख्तों का नमूना। काटते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, काटते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कहीं पे जंगलात पैदा किए। इंसान का सर जो है ये जंगल का नमूना। जंगल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे जानवर पैदा किए जो नुकसानदेह भी होते हैं। इंसान के सर के बालों के अंदर पैदा होने वाली जुएं जो नुकसानदेह है, ये उन जानवरों का नमूना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैवान बनाए हैं। हैवान नुकसानदेह भी है, हैवान मुफीद भी है। इंसान के जिस्म के अंदर जरासीम बनाए, सारे के सारे जरासीम है तो हैवान की शक्ल में, है तो जिंदा, ये नुकसान देने वाले जानवरों का नमूना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने वाली चीजों को पैदा किया, ये मुफीद जानवरों का नमूना। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हवा को पैदा किया, हवा को गर्म पैदा किया। इंसान के जिस्म से निकलने वाला सांस गर्म हवा का नमूना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ठंडी हवा को पैदा किया। ठंडी हवा इंसान सांस लेता है, अंदर सांस जाता है, ठंडी हवा का नमूना। अगर हवा रुक जाए तब भी नुकसानदेह है, हवा तेज चले तब भी नुकसानदेह है। इंसान के जिस्म के अंदर सांस तेज चले, सांस फूल जाए, ये वो भी नमूना है नुकसान देने वाली हवा का। अगर हवा रुक जाए, जैसे सावन भादों के
मौसम में हवस पैदा हो जाती है। इंसान के जिस्म के अंदर अगर पेट में हवा रुक गई, ये रुकने वाली हवा का नमूना, हवा रुक जाए तब भी नुकसान दे, अगर ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान दे। मेरे अजीज भाइयों, सारी की सारी कायनात जो है ये इस तंबू की मानद है, इस साहिबान की मानद है। इसके अंदर ये डंडे जो हैं, ये डंडे इसके अंदर रूह का नमूना है। अगर इस डंडे को खींच लिया जाए, ये सारी कायनात का साहिबान धड़म नीचे गिर जाएगा। इसी तरह इंसान है, इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू ने रूह को पैदा किया है। ये रूह जो है इंसान के जिस्म के अंदर, रूह जो है ये उसकी असलियत का नमूना है, ये इस डंडे का नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया। इंसान के जिस्म के अंदर दो चीजें हैं, एक जिस्म है, एक रूह है। मेरे अजीज भाइयों, इसी तरह पूरी कायनात के अंदर आसमान है, आसमान का एक जिस्म है, एक आसमान की रूह है, एक जमीन है, एक जमीन की रूह है। कायनात का जर्रा जर्रा एक उसका वजूद है, एक उस वजूद के अंदर रूह है। अगर इससे रूह निकाल दी जाएगी, दरख्त खुश्क हो जाएंगे, रूह निकल जाएगी, आसमान टूट जाएगा, रूह निकल जाएगी, जमीन को फाड़ दिया जाएगा, रूह निकल जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। जब रूह निकल जाएगी फिर कायनात का जर्रा जर्रा मुर्दा हो जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। क़यामत को रोका है इस रूह ने, कायनात की रूह ने। जिस्म चल रहा है, उसके रूह की वजह से आसमान खड़ा है, रूह की वजह से जमीन कायम है, रूह की वजह से दरख्त का पत्ता पत्ता कायम है, अपनी रूह की वजह से जर्रा जर्रा कायम है, अपनी रूह की वजह से पानी का कतरा कतरा कायम है, रूह की वजह से। रूह क्या है? यसअलूनका अनिर रूह, ऐ मेरे पैगंबर आपसे पूछते हैं रूह क्या है? कुल मिन अम्रि रब्बी, ये हुक्म मेरे रब का है। जब रब का हुक्म आएगा आसमान से रूह निकल जाएगी, आसमान टूट जाएगा। इधर समाउन फतरत, सितारों के अंदर रूह निकल जाएगी। जब रूह निकल जाएगी वह इधर कवाकिबुन तसरत, आसमान के सितारे भी टूट जाएंगे, आसमान का चांद बेनूर हो जाएगा, आसमान का सूरज बेनूर हो जाएगा। इन सब की रूह क्या है? रूह क्या है? अल्लाह के पैगंबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता युक़ालु फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जमीन पर एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब तक मौजूद होगा सारी कायनात का वजूद बरकरार रहेगा। सारी कायनात की रूह अल्लाह का हुक्म है, सारी कायनात अपनी अपनी तस्बीह करती है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज जो है अल्लाह की, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, आसमान तस्बीह बयान करता है, चांद और सूरज अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, दरख्तों का पत्ता पत्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। वलाकिन ला यफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। मेरे अजीज भाइयों, मैं और आप दरख्त की तस्बीह को क्या समझेंगे? मैं और आप पानी की तस्बीह को क्या समझेंगे? मैं और आप इन दरख्तों की तस्बीह को क्या समझेंगे? मैं और आप दरख्तों की तस्बीह को क्या समझेंगे? मैं और आप हैवानों की तस्बीह को क्या समझेंगे? मैं और आप हम आसमान के फरिश्तों की तस्बीह को क्या समझेंगे? मैं तो और आप हम तो इंसानों की तस्बीह को नहीं समझते। मैं और आप इंसान की बोली नहीं समझते। इंसान हर इंसान है, हर इंसान की बोली अलग है। पश्तो वाला तस्बीह करता है, मुझे समझ नहीं आती। इंग्लिश वाला अंग्रेजी में रब की तस्बीह बोलता है। जुबान तो है लेकिन जुबान के निकलने वाले अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मुझे के अल्फाज समझ नहीं आएंगे। अंग्रेजी जो है उसको सिंधी समझ नहीं आएगी, सिंधी को हिंदी समझ नहीं आएगी, हिंदी को अंग्रेजी समझ नहीं आएगी। हमें
تو انسان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، ہمیں جانوروں کی تسبیح کیا سمجھ آئے گی؟ میرے دوستو، ہاں اللہ رب العزت نے بعض افراد کو ان کو قوت عطا فرمائی، ان کو تسبیح سمجھنے کا مادہ عطا فرما دیا۔ وہ پہلی شخصیات انبیاء ہے، انبیاء میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے سامنے پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حضرت داؤد سمجھتے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے سامنے پرندے بولتے ہیں، ان کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے چونٹیاں بولتی ہے، چونٹیوں کی بولی کو حضرت سلیمان سمجھتے ہیں۔ درخت اس کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں بولتی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، حضرت سلیمان ان کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ جنات بولتے ہیں، حضرت سلیمان ان کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ ہاں سمجھا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیارے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے اونٹ آ کے شکوہ اپنے مالک کا کرتا ہے، حضرت میرے پیغمبر نے سمجھا ہے۔ ہرنی آ کر اپنے بچے کو دودھ پلانے کا وعدہ لیتی ہے، میرے پیغمبر نے سمجھا ہے۔ پتھر حضرت رسول اللہ کے کہنے پر ابو جال کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتا ہے، میرے پیغمبر نے پتھر کی بولی کو سمجھا ہے۔ اور جانور آ کر اپنا شکوہ کرتے ہیں، حضرت پیغمبر نے ان کی بولی کو سمجھا ہے۔ ہاں میرے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہیں، درخت جھک کے سلام کرتے ہیں، ان کے سلام کو سنا ہے۔ پتھر بولتے ہیں، پتھروں سے نکلنے والی آوازوں کو میرے پیغمبر نے سنا ہے۔ میرے پیغمبر سنتے بھی ہے، میرے پیغمبر سمجھتے بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے عرض کیا ہے، ہم تو انسانوں کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، حیوانوں کی تسبیح کو کیا سمجھیں گے، ملائکہ کی تسبیح کو کیا سمجھیں گے، درختوں کی تسبیح کو کیا سمجھیں گے، حجر اور شجر کی تسبیح کو کیا سمجھیں گے۔ تسبیح ہے ضرور، ہر ایک اپنی اپنی شان سے اپنے اپنے حال پہ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک انسان غافل ہے، ایک انسان غافل ہے۔ اگر دیکھا جائے جتنے انعامات کی بارش اللہ نے میرے انسان پر کی ہے، میرے اور آپ کے اوپر کی ہے، حضرت انسان پر ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم اتنی تو انعامات کی بارش کائنات کی کسی چیز پر نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے تو صحیح، صرف سمجھنے کے لیے ایک لباس ہے، ایک خوراک ہے، ایک سواری ہے، کتنے لوگ کتنی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک جانور ہے، اس کی خوراک، بعض جانور ایسے ان کی خوراک صرف گھاس ہے، جب سے پیدا ہوئے مرنے تک ان کی خوراک صرف گھاس ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کی خوراک صرف دودھ ہے، بعض جانور ایسے جن کی خوراک صرف اور صرف گوشت ہے۔ گوشت کھانے والے دودھ نہیں پیتے، دودھ پینے والے گھاس نہیں کھاتے، گھاس کھانے والے وہ دودھ نہیں پیتے، گھاس کھانے والے گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت انسان کو دیکھیے، پوری کائنات کی چیزیں اس کی خوراک بن گئی، یہ سارے کے سارے حیوان اس کی خوراک بن گئی، سمندر کی مچھلیاں اس کی خوراک بن گئی، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اس کی خوراک بن گئی، زمین سے اگنے والی چیزیں اس کی خوراک بن گئی، یہاں تک کہ لوہا، سونا، چاندی کشتے کے نام پر اس کی خوراک بن گئی۔ میرے عزیز دوستو، آپ دیکھیے تو صحیح، حیوان ہے، حیوان کے اوپر سواری کر کے نہیں جاتا، اپنی ٹانگوں پہ جاتا ہے۔ مچھلی کے اوپر چڑھ کے سواری کر کے نہیں جاتا، اور وہ اڑنے والے پرندے کبھی ایک پرندہ دوسرے پرندے پر اڑ کر سفر نہیں کرتا۔ قربان جائیے حضرت انسان کی شان پر، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی سواری بن گیا۔ جس انسان کے لیے مٹی سے پیدا ہونے والا لوہا اس کی سواری میں استعمال ہوا، اس سے نکلنے والا تانبا سواری میں استعمال ہوا، اس کے لیے سونا اور چاندی اس کی سواری کے لیے استعمال ہوا، آج یہ اس کے لیے بننے نکلنے والی لکڑیوں کے پھٹے، بننے والا پلاسٹک، ہر چیز انسان کی سواری پہ استعمال ہو گیا۔ حیوان
इंसान की सवारी बन गए और फजा पे उड़ने वाली चीजें इंसान की सवारी बन गई। अगर लिबास की बात है, देखिए तो सही, एक परिंदा जब से पैदा हुआ जब तक मरता है उसकी लिबास, उसके चंद एक पर होते हैं। बस ऐसे जानवर जिसकी जिस्म के ऊपर उगने वाले बाल उसका लिबास है, उसकी खाल उसका लिबास है। अगर खाल वाला उस पर नहीं है, पर वाला है उसकी खाल नहीं है, खाल वाला उस पे बाल नहीं है, कुर्बान जाइए हैरत इंसान पर कायनात का जर्रा जर्रा इसका लिबास बन गया। लेदर से बनने वाले तमाम जानवरों के चमड़े से पैदा होने वाली चीजें, कोई जूता बन गया इसका लिबास बना, किसी का कपड़ा उगा कपड़ा इसका लिबास बना। और देखिए तो सही, हाय हाय तकाजा ये था इन नेमतों का, और जिसको कुछ ना मिला पत्थर भी फिलता है, उसके आंसू निकलते हैं, आंसू निकले दरिया बन जाते हैं, समंदर बन जाते हैं। एक इंसान का दिल है पत्थर से भी ज्यादा सख्त है, अल्लाह की खा के भी अल्लाह का नाम नहीं लेता, अल्लाह का खा के भी अल्लाह का नाम नहीं लेता। जितना आज इंसान अल्लाह की तस्बीह से गाफिल है, कायनात का कोई जर्रा अल्लाह की तस्बीह से गाफिल नहीं है। होना तो ये चाहिए था हर लम्हा दम बदम अल्लाह अल्लाह की सदा, इसके जिस्म से लू से अल्लाह का नाम निकलता। होना तो ये चाहिए था दम बदम इसके दिल से अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगनी चाहिए थी। लेकिन जितना आज इंसान अपने अल्लाह से गाफिल हो गया, इतना तो हैवान भी अल्लाह से गाफिल नहीं है, इतना तो हैवान भी अल्लाह से गाफिल नहीं है। मेरे अजीज भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, हक बनता था ये अल्लाह का नाम लेता। अल्लाह का नाम ही जिंदगी है, अल्लाह का नाम ही जिंदगी है। अल्लाह का नाम निकल जाए, चलता फिरता इंसान मुर्दे की शक्ल में चल रहा है। ये मैं नहीं अर्ज कर रहा। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस बात पर फरमाया, जिक्र करने वाला गफलत में बैठने वालों में ऐसा है जैसा एक जिंदा मुर्दों के अंदर बैठा हुआ हो। यही वजह है, कितना यकीन था हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को। अर्ज किया, मुझे भेजिए, मैदान के अंदर निकलूंगा, तश्कील हो रही है, 200 ले जाओ, जरूरत नहीं है अकेला जाऊंगा। 100 ले लो, जरूरत नहीं है अकेला जाऊंगा। 50 ले लो, जरूरत नहीं है अकेला ही काफी हो। ए खालिद 10 तो ले लो। अर्ज किया, नहीं एक ही काफी है। फरमाया क्यों? फरमाया वो सारे मुर्दे हैं, मैं एक अकेला हूं, उनकी मुर्दों की गर्दनें काटने के लिए एक जिंदा काफी होता है, एक जिंदा काफी है। तो मेरे अजीज भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, हमारी ये खानकाहें ये किस चीज का दरस देती है? अल्लाह की गफलत से दूर करके अल्लाह का जिक्र मेरे और आपके दिल के अंदर आ जाए, अल्लाह की याद मेरे और आपके दिल के अंदर आ जाए, दिल जिंदा हो जाए, जिक्र करने वाले बन जाए, अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाए। यही खानका हनफिया इसी मकसद के लिए खानका हनफिया है। दूसरी खानकाएं भी हैं, अल्लाह का शुक्र पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खानका हनफिया अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीकत मुतकल्लम इस्लाम हमारे मुर्शिद हज़रत मौलाना इलियास गुम्मद दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती के अंदर हमारी खानकाहें यही मजाज दे रही हैं, यही दरस दे रही हैं। हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाए, हम जिंदगी इख्तियार करने वाले बन जाए, हम मुर्दों से निकलकर जिंदा शक्ल वाले बन जाए। हम अल्लाह की याद, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपनी याद को वाबस्ता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।